Hi guys, welcome to Insight SSB YouTube channel. I'm Vishali and I'm here with a new topic for you, and that is awards and honors. As I stated that I'll be helping you out with the static GK portion for IFCAT exam, as that holds the maximum percentage and not the current. And henceforth we'll be starting with awards and honors. When we talk about awards and honors, every time there are chances that you'll get direct one or two questions in each and every shift, because you know that IFCAT examination is held in shifts these days. So there are chances that you'll get direct question out of it, and hence it's very important. So we will be covering the topic according to the type of questions that are asked in the examination, and let's begin with it. Coming to the first thing, that is award and the field. So directly a question is asked that this particular award is given related to which field. For example, we'll start with the Oscar award. It is given related to films, and it was first started in 1929. It is also known as Academy Award. So if anybody says that when were the Academy Awards first given or anything like that, you should have a direct idea that they're asking about the Oscar. Fine. Moving to the second one, that is your Pulitzer Prize. It is given for journalism and it was started in 1917. Now letting you know all of these awards, I'm just giving you a brief description about each and every one. Thereafter, whichever are important, we'll go more in detail once we discuss it, because the question like award and the field is asked directly, and thereafter there are some in-depth question also asked that I'll be dealing thereafter once I'll complete the area, that is which award is for which field. So the Kalinga Award, it has been asked already in IFCAT exam, and it's not asked just once, it has been asked twice. ठीक है. So कलिंगा अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है? It is related to science and start हुआ था 1952 में. नोबेल प्राइज, एवरीबडी नो कि नोबेल प्राइज टोटल कितने हैं? हमारे पास सिर्फ 6 फील्ड्स हैं. ठीक है. द फर्स्ट वन इज पीस, सेकेंड वन इज लिटरेचर, थर्ड इज मेडिसिन, फोर्थ इज फिजिक्स, फिफ्थ इज केमिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स जो है ये बाद में ऐड किया गया था. जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज, इट स्टार्टेड विद ओनली 5, दैट इज पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इकोनॉमिक साइंसेज जो है वो बाद में ऐड किया गया था. सो यू लेट मी नो इन विच ईयर वॉज इट एडेड. ओके. एंड ऑलरेडी मैंने नोबेल प्राइज जो है वो आपके IFCAT करंट अफेयर्स की पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं, बिकॉज जो रिसेंट जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं अलॉन्ग विद the Indians who have got Nobel Prize, because that gets very important, वो सब already discussed है part 2 में. If you haven't watched, please make sure you go and watch that video as well. The next one is the Man Booker Prize. Very very important. इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि कौन से इंडियन को बुकर प्राइज मिला है. ठीक है. इस साल किससे मिला है? जैसे अगर 2020 ईयर गया है तो उसमें किसको मिला है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जो मैन बुकर प्राइज है, इट इज गिवन फॉर लिटरेचर, और वो स्टार्ट कब हुआ था? 1929 में. तो ध्यान क्या देना है कि आपका ऑस्कर अवार्ड और आपका जो मैन बुकर प्राइज है वो एक साथ स्टार्ट हुए हैं. देखो 1929 में स्टार्ट हुए हैं दोनों. ठीक है. नोबेल प्राइज कौन से ईयर में स्टार्ट हुए? ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 2 ऑफ IFCAT करंट अफेयर्स. टॉकिंग अबाउट द बुकर प्राइज, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस इन IFCAT पार्ट 1. ठीक है. तो करंट अफेयर्स जो है उसमें देख लेना, बिकॉज उसमें करंट के साथ आपके कुछ स्टैटिक पोर्शन भी एडेड है. Moving to the next one, that is your Grammy Awards. Very very important. It is related to music and start हुए थे 1958 के अंदर. ठीक है. काफी लोग ग्रैमी अवार्ड्स को मिस्टेकनली फिल्म अवार्ड्स मान लेते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं. आपको ध्यान देना है, इट इज रिलेटेड टू म्यूजिक. द नेक्स्ट वन इज रेमन मैग्सेसे अवार्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको प्लीज स्टार मार्क कर लीजिए. इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है IFCAT में और अदर डिफेंस एग्जाम्स के अंदर भी. सो पहली बात, ये किस चीज से रिलेटेड है? गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सर्विस, सोशल अवार्ड सर्विस, जर्नलिज्म, लिटरेचर, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट कब हुए थे? 1957 में आपके रेमन मैग्सेसे अवार्ड स्टार्ट हुए थे. If we talk about Raymond Magsaysay, it's very important to know one thing, that he was the president of Philippines. Okay, Philippines के आपके president थे ये. And one more important thing to know is that जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये एशिया का प्रीमियर प्राइज माना जाता है और ये हाईएस्ट ऑर्डर है एशिया के अंदर. ठीक है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड. ये अवार्ड जो है वो फिल्म के लिए दिया जाता है और इंडिया के अंदर दिया जाता है. ठीक है. एंड ये स्टार्ट कब हुआ है? 1969 में स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट वन इज ज्ञानपीठ अवार्ड, लिटरेचर के लिए. सरस्वती सम्मान, अगैन लिटरेचर के लिए. ठीक है. आपका जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 1965 में स्टार्ट हुए थे और जो आपका सरस्वती सम्मान है 1991.
ज्ञानपीठ अवार्ड का याद रखना जरूरी है कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है, लेकिन सरस्वती सम्मान का याद रखना जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन आ जाएगा दैट इट इज रिलेटेड टू विच फील्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये वाले जो अवार्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर कोई जानता है कि नोबेल प्राइज किस लिए दिया जाता है, ऑस्कर किस लिए दिया जाता है। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन द अवार्ड्स दैट दे डोंट हैव अ ग्रेट आइडिया अबाउट। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान देना। भटनागर अवार्ड जो है वो किस लिए है, साइंस के लिए है। एक और साइंस का हमने अवार्ड अभी डिस्कस किया था, कौन सा था वो, कलिंगा, राइट, कलिंगा था। अब कलिंगा कौन से ईयर में था, जल्दी बताओ विच वन इट इज, यू विल जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट अवे। द नेक्स्ट वन इज धनवंतरी अवार्ड, ये किस लिए दिया जाता है, मेडिकल साइंसेस के लिए, ठीक है, ये भी साइंस का ही अवार्ड है लेकिन ध्यान देंगे मेडिकल साइंस, ओके। नेक्स्ट वन इज बोरलॉग अवार्ड, बोरलॉग अवार्ड जो है एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, शंकर अवार्ड, शंकर अवार्ड दिया जाता है इंडियन फिलोसफी, कल्चर एंड आर्ट के लिए। डेविड कोहेन अवार्ड लिटरेचर के लिए दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आस्क्ड इन इफ कैट एग्जामिनेशन, चांसेस दैट इट कैन कम वंस अगैन, सो प्लीज ध्यान देंगे। डेविड कोहेन किसके लिए है, लिटरेचर के लिए है। नेक्स्ट वन इज सरस्वती सम्मान, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज वचस्पति अवार्ड, ये किस लिए दिया जाता है, ये लिटरेचर के लिए ही है लेकिन संस्कृत लिटरेचर के लिए है और स्टार्ट किया गया था 92 में। सिर्फ ये याद रखना जरूरी है कब किस चीज के लिए दिया जाता है, दैट इज संस्कृत के लिए, ओके। द नेक्स्ट वन इज व्यास सम्मान, लिटरेचर के लिए है। कबीर सम्मान किस लिए है, सोशियो कम्युनल हार्मनी के लिए, ध्यान देंगे, सोशल कम्युनल हार्मनी, कौन, कबीर, ठीक है, कबीरदास के दोहे आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। सो एज यू नो दैट ही डिडंट स्टैंड फॉर वन सिंगल रिलीजन, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं दैट सोशियो कम्युनल हार्मनी के रिलेटेड ये अवार्ड है। नेक्स्ट वन इज द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुना अवार्ड, स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य जो दिया जाता है दैट इज गिवन टू द कोचेस, ठीक है, दैट इज गिवन टू द कोच, ठीक है, जो स्पोर्ट्स कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हमारे इतने एमिनेंट प्लेयर्स हैं, देयर आर सो मेनी Indian players who are making us proud abroad, right, in international events. So of course there is somebody who is at the back, just like Insight SSB is there for your preparation related defense. In the same way there are coaches who are behind the training of such eminent players. So उनके जो coaches होते हैं उनको क्या दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। Coming to the next one, that is Arjuna Award. Arjuna Award दिया जाता है स्पोर्ट्स से related 1961. Now, as we have discussed the awards and the fields, now we'll go a little more in depth and try and understand that there are various important questions that come out directly from these particular awards. So let us deal with all of them. Okay? Coming to the first one, that is Bharat Ratna. Okay? So it was started in 1954. It is basically a people leaf that is given, and it is almost 5.8 centimeters in length, 4.7 centimeters in breadth and 3.1 millimeter in its thickness, okay. It is made up of bronze and the motto plus this Bharat Ratna, it is written in which language, it is written in Hindi, okay. You need to remember कौन सी language में लिखा हुआ है, very very important. They can also ask the script, तो script का आप मुझे आंसर देंगे कौन सी script है। Coming to the next information, it is the highest civilian award. अगर पूछा जाए examination में that amongst all of these awards, which one is the highest civilian award in India? Okay, so you will mark the answer as Bharat Ratna. आप याद रखेंगे। For what it is given? It is given for exceptional service. किस किस चीज में? पहली बात है art, the second one is literature, third one is science, and the fourth one is public service. याद रखना है सिर्फ इन चार चीजों के लिए ही दिया जाता है, इसके अलावा और कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जिसके लिए भारत रत्न दिया जाता है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स, सो फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एंड डॉक्टर सीवी रमन, ओके। एज वी हैव डिस्कस्ड इन करंट अफेयर्स पार्ट 2, सीवी रमन के बारे में आप जानते ही होंगे, ही इज ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर, राइट, एंड they were given this award in 1954. First foreigner who has got Bharat Ratna, the name of the person is Abdul Ghaffar Khan. Now what you need to know is कि ये कौन सी country से belong करते हैं, आप मुझे ये भी बताएंगे, it's very very important. Moving to the next one, first person who was awarded posthumously, so the person's name is Lal Bahadur Shastri and he was given in 1966. Talking about the first women recipient, it is Indira Gandhi. As you know that she had been the Prime Minister of India also,
and she was awarded the same in 1972. These are all the important information related to Bharat Ratna. Coming to the next one, that is Padma Awards. When we talk about Padma Awards, we need to remember that it is one of the highest civilian awards, okay? Not the highest, but one of the highest. अगर highest की बात करें तो कौन सा है? We have already discussed that. That is Bharat Ratna, okay? So Padma Awards की अगर हम बात करते हैं, initially it was known as something else. That is पहला वर्ग, दूसरा वर्ग and तीसरा वर्ग. But now the name has been changed to Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri respectively, and it was done by President's notification on January 8, 1955. Fine. If we talk about Padma Awards, it is awarded by President of India, and it is given on which date? It is given on the Republic Day. Fine. If we talk about how is it selected, it is selected by a committee, और वो जो committee है वो form कौन करता है? Prime Minister of India form करते हैं उन्हें, ठीक है? When we talk about these awards, we need to know one thing, that there is centrally located lotus, as you can see in all of these, and Padma Vibhushan, Padma Shri, all of this is written in Hindi language. And if we talk about the script, it is written in Devanagari script. Fine. Please remember all of these important points. And if we even talk about the field, कि किस फील्ड में दिए जाते हैं अवार्ड्स, तो ये बहुत सारी फील्ड्स है, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, इवन इन स्पोर्ट्स एंड सिविल सर्विस, ओके. So we need to remember all of these points. One thing, Padma awards are usually not given posthumously, but there are certain cases जिसमें गवर्नमेंट दे सकती है, but usually it is not given posthumously. Fine. अब एक बार बात कर लेते हैं कि ये दिए किस लिए जाते हैं. तो पद्म विभूषण जो है दैट इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस. इफ यू टॉक अबाउट पद्म भूषण, it is given for distinguished service of higher order, and if we talk about Padma Shri, it is given for distinguished service. So these are the main points that we need to remember about the Padma Awards. Moving to the next one, that is your gallantry awards. Gallantry awards are very very important, and अगर हम gallantry की बात करते हैं, दो टाइप पे डिवाइडेड होते हैं. एक होते हैं जो वॉर टाइम पे दिए जाते हैं, और एक होते हैं जो पीस टाइम पे दिए जाते हैं. फाइन. सो अगर वॉर टाइम पे बात करें तो हाईएस्ट कौन सा है? परमवीर चक्र. और अगर पीस टाइम की बात करें तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है? दैट इज योर अशोक चक्र. सो यू नीड टू रिमेंबर, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड इट हैज इवन कम बिफोर हैंड. सो इफ समबडी आस्क मी टुडे दैट ओके विच इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, सो इट इज अशोक चक्र. प्लीज पीवीसी मार्क नहीं करना है. फाइन. So let us discuss a little about them. तो परमवीर चक्र जो है, this is the highest decoration as I have told when it comes to the war time. Fine. So conspicuous bravery, self-sacrifice, very important. So when we talk about your self-sacrifice in the presence of enemy, whether it is land, air or sea, that means it is given to be the person from army, air force or navy, land, air or sea. Fine. The second one is Mahavir Chakra and the third one is your Veer Chakra. बस यहाँ पर जो आपको मेन चीज पे ध्यान रखना है दैट इज की सेल्फ सैक्रिफाइस गिवन है यहाँ पर. प्लीज टेक अ नोट परमवीर चक्र में. ओके. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट महावीर चक्र, इट इज अबाउट any kind of act of conspicuous gallantry in the presence of enemy, and same is the case for Veer Chakra also, but the degree is different, like how much they have done, what kind of situation it was. It depends that they'll be given Mahavir Chakra or the Veer Chakra. But when we talk about the Paramveer Chakra, we need to remember that self-sacrifice, if anybody got martyred in that situation, so that is your Paramveer Chakra. Now moving to the next one, that is your peacetime awards. Okay, so peacetime में जो अशोक चक्र है, that is highest peacetime gallantry award, which is equivalent to PVC. एंड जब हम कीर्ति चक्र की बात करते हैं तो महावीर चक्र के इक्विवेलेंट है, और शौर्य चक्र जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? वीर चक्र के इक्विवेलेंट है. जो कीर्ति चक्र है दैट इज अवॉर्डेड फॉर कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री एंड ये सिल्वर से बना हुआ है, और शौर्य चक्र की अगर हम बात करते हैं तो ये बनता है ब्रॉन्ज से, एंड इट इज ऑल्सो गिवन फॉर द एक्ट ऑफ गैलेंट्री. Coming to the Oscars, as we've already discussed कि ऑस्कर दिए जाते हैं फॉर एक्सेलेंस इन एनी काइंड ऑफ सिनेमैटिक अचीवमेंट, और ये फर्स्ट टाइम अवार्ड किए गए थे 1929 में. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल अंडर ऑस्कर्स. सो फर्स्ट वन इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. सो ही इज द ओनली पर्सन हु हैज गॉट बोथ ऑस्कर्स एज वेल एज योर नोबेल प्राइज. ओके. तो नोबेल प्राइज इन्हें किस चीज के लिए मिला है? ही हैज गॉट इट फॉर लिटरेचर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्कर ही हैज गॉट इट फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले. ठीक है. कब मिला है इन्हें? ही हैज गॉट इट इन 1938.
सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना, क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन हु हैज गॉट बोथ ऑफ दीज अवार्ड्स. द सेकेंड वन इज मदर इंडिया. काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मूवी दैट वॉज नॉमिनेटेड, और काफ़ी छोटे से मार्जिन से ऑस्कर जीते जीते रह गई थी ये मूवी. सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज फर्स्ट मूवी विच वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स. नेक्स्ट वन इज भानु अथैया. इसको प्लीज आप स्टार मार्क कर लो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी रिसेंटली पास्ड अवे इन 2020. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनको क्या मिला था एक्चुअली? शी गॉट बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन. कौन सी मूवी के लिए मिला इन्हें? इन्हें मिला है गांधी मूवी के लिए. गांधी मूवी जो रिचर्ड एटनबर्ग ने बनाई थी. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज सत्यजीत रे. सत्यजीत रे को मिला है ऑनरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर पत्थर पचाली. ठीक है. तो पत्थर पचाली के लिए इन्हें क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 1992 में. अगर रेसूल पुकुत्ती की बात करते हैं हम, दिस पर्सन हैज गॉट इट फॉर बेस्ट साउंड मिक्सिंग फॉर स्लमडॉग मिलेनियर. ठीक है. स्लमडॉग मिलेनियर के लिए इन्हें बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए मिला है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गुलजार साहब जो हैं उनको मिला है, और इनके साथ साथ आपके AR रहमान जो हैं, इन दोनों को मिला है. AR रहमान एंड गुलजार साहब. और इनको भी किसके लिए, कौन सी मूवी के लिए मिला है? देव ऑल्सो गॉट इट फॉर स्लमडॉग मिलेनियर. और जो सॉन्ग है दैट इज योर जय हो. ठीक है. जय हो के लिए इन्हें मिला है. Now coming to the Oscar Prize 2020, the best picture is The Parasite, best actress is Renée Zellweger for the movie Judy, best actor is Joaquin Phoenix for the movie Joker. Talking about the best director, it has been awarded Bong Joon-ho for the movie Parasite, animated short film is Hair Love, and animated feature film is Toy Story. So ये सारे important Oscar prize हैं 2020 के लिए. You need to remember all of these in case the question comes that who has been awarded the best actor or best actress. You should have an idea about it. Coming to the next one, that is your Booker Prize. Very very important. We have already discussed the same in the part 1 of current affairs series, right? तो Booker Prize की जब हम बात करते हैं, it was firstly awarded in 1969. And if we talk about why it is awarded for English fiction. Okay, तो English fiction से related ये आपका प्राइज है. बुकर प्राइज जो इस साल 2020 में जीता है, वो जीता है डॉगलस टूविट ने, एंड इट हैज़ बीन फॉर शगी बेन. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियंस जिन्होंने बुकर प्राइज जीते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो पूछी जाती है, डायरेक्ट नॉवल पूछ ली जाती है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है, या फिर द वाइट टाइगर किसने लिखा है, इन अ फ्री स्टेट किसने लिखा है. सो यू शुड डायरेक्टली लिंक इट टू दैट कि VS नायपॉल ने लिखी है इन अ फ्री स्टेट. सो यू शुड हैव एन आइडिया बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ऑलमोस्ट हर बार आता है. लास्ट टाइम अरुंधति रॉय के ऊपर आया था, इस बार चांसेस हैं कि अरविंद अडीगा पे आ जाए, राइट. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स और इनके नेम और इन्होंने कब जीते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसे. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है. सो द नेम ऑफ द लेडी इज Bernice Rubens, and she has won it in 1970. Coming to the next one, that is Raymond Magsaysay Award. So it is Asia's premier prize and the highest honor, and that is why it is very very important. Talking about Raymond Magsaysay, who was he? He was actually the Philippines president, और इन्हीं के नाम पे इंस्पायर होकर ये अवार्ड दिया जाता है. फर्स्ट टाइम 1957 में दिया गया था, और कौन सी कंट्री देती है? फिलीपींस देती है. देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज जिसके अंडर दिया जाता है. इनिशियली 6 कैटेगरी थी, इनमें से 5 डिसकंटिन्यू कर दी थी 2009 ऑनवर्ड्स. अगर हम आज की बात करते हैं, सो गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, या जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, पीस, इमर्जेंट लीडरशिप, इसके लिए रेमंड मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है. फर्स्ट जो इंडियन है जिन्हें रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मिला है, दैट इज विनोबा भावे, और इनको दिया गया है कम्युनिटी लीडरशिप के लिए 1958 में. ध्यान रखेंगे कि इंडिया को फर्स्ट टाइम कब मिला है? 1958 में. किसको मिला है? विनोबा भावे. आफ्टर दैट मदर टेरेसा को भी मिला है 1962 में पीस के लिए. इसके अलावा इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है. सो यू हैव टू आंसर कि इन्हें कब मिला था. टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो इंडियन है, वो अरविंद केजरीवाल हैं. फर्स्ट जिन्हें जर्नलिज्म के लिए मिला है, दैट इज अमिताभ चौधरी, और पब्लिक सर्विस के लिए जिन्हें मिला है, दैट इज जयप्रकाश नारायण. टॉकिंग अबाउट नोबेल प्राइज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द पार्ट 2. प्लीज मेक श्योर आप उसमें जाके सब कुछ देख लें. जो करंट अफेयर्स का आपका पार्ट 2 है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन है अलॉन्ग विद द रीसेंट नोबेल प्राइजेस. ठीक है, आई वोंट बी रिपीटिंग इट इन दिस, सो प्लीज मेक श्योर आप जाके उसे कंप्लीट करें फ्रॉम पार्ट 2 ऑफ करंट अफेयर्स. आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट वीडियो. Moving to the next one, that is Dada Saheb Phalke Award.
सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की जो फर्स्ट रेसिपेंट रही हैं दैट इज देविका रानी, ध्यान रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये जो अवार्ड है उसके अंदर एक स्वर्ण कमल या फिर गोल्डन लोटस होता है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। When we talk about the दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2020, सो ये दिया गया है ऋतिक रोशन को फॉर द बेस्ट एक्टर, एंड बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, दैट इज सुपर 30। Coming to the next one, that is Pulitzer Prize. Pulitzer Prize is very, very important. Now, coming to the thing that it is given for what? It is given for newspaper journalism, literary achievements, or musical composition, and it is given by the country United States. When we talk about Pulitzer Prize, it was first awarded in 1917. Directly question आ जाता है कि पहली बार Pulitzer Prize कब दिया गया था? So you should have an idea. It was given in 1917. The first winner was Jean-Jules Gisrand, and he was a civil servant. First Indian who had got the Pulitzer Prize, very, very important. It is Gobind Bihari Lal for journalism in 1937. Talking about Pulitzer 2020, it is very, very important because certain Indian people, that is Chani Anand, Mukhtar Khan and Yasindar, they are from Jammu and Kashmir, and they are actually photojournalists. So they have been awarded Pulitzer Prize as they showed photojournalism, in which they talked about Article 370 that has been scrapped recently. So उसके बारे में कुछ photojournalism था जिसके लिए उन्हें प्राइज मिला है. So it's very important. The next one is Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. अगैन वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड. ये लॉन्च किया गया था 91-92 में, और ये किस लिए दिया जाता है? दिस इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. ऑलमोस्ट 4 साल की आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए. जैसे अगर इस साल आपको अगर अवार्ड दिया जा रहा है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उससे पहले जो 4 साल रहे हैं उसमें आप काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दें, स्पेसिफिकली एट इंटरनेशनल लेवल, नॉट एट नेशनल. ठीक है. अगर बात करें कि फर्स्ट टाइम किसे दिया गया था, इट वॉज गिवन टू द ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन. एज यू नो, विश्वनाथ आनंद, ही इज़ वेरी, वेरी फेमस फॉर चेस, राइट. तो इनको फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न. इफ़ वी टॉक अबाउट द यंगेस्ट रेसिपेंट, मतलब जो यंगेस्ट कौन है जिनको ये मिला था, so Abhinav Bindra, when he was just 18 years old, he got this, and he's basically a shooter, if you all know. Agar game association aa jata hai that Abhinav Bindra is related to which sports, you should have an idea that he's related to shooting. Okay. The next one is Karnam Malleshwari. She is the first woman to get Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, and she got it in 1994 to 1995 year. Next one is Pankaj Advani. He is the only player जिनको award receive हुआ है for 2 different games, a very big achievement. तो उनको स्नूकर और बिलियर्ड दोनों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है. वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. इस साल जो आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैं, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, इनकी जो अमाउंट है वो चेंज की गई है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. 2020 में द अमाउंट हैज़ बीन चेंज बाय किरेन रिजिजू, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, राइट. सो 7.5 लाख से रिवाइज करके इसका कितना हो गया प्राइस? प्राइस मनी इज नाउ 25 लाख. फाइन. Coming to the 2020 recipients of the award, it is usually given to 3 people, but this time it has been given to 5 people. So again, a very important thing. Talking about the recipient, that is your Rohit Sharma, we need to know that before him, how many cricketers have been awarded. So there have been total 3 cricketers. That is first your Sachin Tendulkar, the second one being MS Dhoni, and the third one being Virat Kohli. Fine. After that, it is now given to Rohit Sharma. So he is the 4th cricketer to get the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. The next one is Sri Mariappan. इनके आते हैं question directly that this person is related to which game. So Sri Mariappan is related to para athletics. Miss Manika Batra is related to table tennis. Mr. Vinesh Fogart, he is related to wrestling, and Miss Rani Rampal is related to hockey. तो इनको इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स मिले हैं. वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. Coming to the next one, that is Arjuna Award. ये इंस्टीट्यूट किए गए थे 1961 में, एंड इनको दिया जाता है फॉर गुड परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली फॉर 4 years एट इंटरनेशनल लेवल. हर साल 15 अवार्ड से ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, जैसे कि हमने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में भी डिस्कस किया, नाउ डेज दे आर अवॉर्डेड टू मेनी मोर पीपल, लाइक 26, 27 भी हो जाते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट इस बार इसका भी प्राइस मनी रिवाइज किया है 2020 में फ्रॉम 5 लाख टू 15 लाख इंडियन रुपीज. एंड द फर्स्ट पर्सन हु गॉट अर्जुन अवार्ड was Krishna Das, and he got it for archery in 1961.
Now, from 2001, if we talk about the discipline falling under the category of Arjuna Award, it has been changed to Olympic, Commonwealth, Asian Game, World Championship. या फिर second thing is your indigenous games, या फिर third जो चीज़ है that is sports for physically challenged people. ठीक है, तो याद रखना है कि डिसिप्लिन कौन कौन से हैं. ओलंपिक या कोई भी, जैसे अगर वर्ल्ड पे मेजर इवेंट है, ओलंपिक हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, आपका एशियन गेम हुआ, उसके लिए दिया जाता है. या फिर कोई भी इंडिजिनस गेम, जैसे कि मल्लखंबा भी रिसेंटली हम लोगों ने एडअप किया है एज अ गेम इन खेलो इंडिया, राइट. सो उस टाइप के अवार्ड्स. या फिर आपका जो थर्ड वन है दैट इज किसी भी फिजिकली चैलेंज स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड दिया जाता है. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो अगर हो सके प्लीज़ गो थ्रू द लिस्ट. इट इज़ अवेलेबल ऑन विकीपीडिया. आप जाके सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड इट. एक बार लिस्ट देख लेना जस्ट फॉर द सेक कि अगर उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट दिस पर्सन इज रिलेटेड टू विच गेम, दैट इज द ओनली टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम. फाइन. द नेक्स्ट वन इज ध्यानचंद अवार्ड. ध्यानचंद अवार्ड जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पे दिया जाता है, एंड वी नो दैट ही वॉज इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर. इनको फेमसली द विजर्ड भी बोला जाता है, and he had been the hockey player. Under his captaincy India has won the Hockey World Cup. So please important है याद रखना. और कौन से ईयर में जीता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ध्यानचंद अवार्ड स्टार्ट किए गए थे 2002 में, और ये दिए जाते हैं बिकॉज इफ एनी देर इज एनी स्पोर्ट्स पर्सन हु इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्पोर्ट्स इवन आफ्टर द रिटायरमेंट. ओके, सो फॉर दैट वेरी वर्क दिस अवार्ड इज गिवन. और इसका जो प्राइस मनी है इट हैज़ बीन रेज्ड इन 2020 फ्रॉम 5 लाख टू 15 लाख इंडियन रुपीज. एंड इसमें 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं पर ईयर. बट दिस, एज आई टोल्ड बिफोर हैंड ऑल्सो, दैट यू नो दीज अवार्ड्स दे आर स्टेटेड एज इट इज गिवन टू 3, 5 और मे बी एनी नंबर. बट आजकल ज़्यादा लोगों को दिए जाते हैं. सो प्लीज़ आप इन चीज़ों को कंसिडर मत करना. अगर पूछा जाए तो आजकल दिस इज नॉट बीइंग फॉलोड. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड. इसमें आपको जस्ट एक बात याद रखनी है दैट ये कोच को दिया जाता है. और ये जो अवार्ड है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1985 में. और जो कोच होते हैं वो कौन से कोच होने चाहिए? जिनके जो स्पोर्ट्स प्लेयर जिनको भी वो कोच कर रहे हैं दे शुड हैव अचीव्ड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट किसी ना किसी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, तभी उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है. और इसका भी जो प्राइस मनी है दैट हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 5 लाख टू 15 लाख इंडियन रुपीज. Coming to the next thing, that is your 65th Amazon Filmfare Award 2020. So the best film had been Gully Boy. Best director had been for the Gully Boy itself, that is Zoya Akhtar. Talking about best actor in the leading role, that is Ranveer Singh, again from the Gully Boy. And best actor is Alia Bhatt, again from the Gully Boy. So जितने भी awards गए हैं सारे Gully Boy को ही गए हैं, चाहे वो best actor का हो, best actress का हो, director या फिर film का. Talking about the Lifetime Achievement Award, it has been given to Ramesh Sippy. And when we talk about excellence in cinema, it has been given to Govinda. Moving to the next one, that is 51st International Film Festival of India. Very very important. इस बार इसका जो venue था that was in Goa. Directly पूछा जा सकता है कि 51st International Film Festival कहाँ पर हुए हैं? गोवा में हुए हैं. ठीक है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप एक बार देख लेना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दीज आर दीज 4. दैट इज द बेस्ट फिल्म जिसको गोल्डन पिकॉक मिला है, दैट इज इनटू द डार्कनेस विच हैज बीन डायरेक्टेड बाय एंडर्स. टॉकिंग अबाउट बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जिसको सिल्वर पिकॉक मिला है, दैट इज चेन नियान को फॉर द साइलेंट फॉरेस्ट. बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में जिन्हें सिल्वर पिकॉक मिला है, दैट इज जू शुआनलू फॉर द साइलेंट फॉरेस्ट अगैन. एंड द बेस्ट एक्टर, that is the female actor, that is silver peacock जिन्हें मिला है, it is Zofia Stafface and she has got it for I Never Cry. ठीक है, these are most important. ये 4 याद रखने हैं, that is it. ये ऊपर 2 इतने important नहीं है. Venue is very very important because इस time वो कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है. Now these are very important Republic Day parade related things and it is very very important. The first one is कि इस बार जो Republic Day parade के parade commander रहे हैं वो कौन है? He is Lieutenant General Vijay Kumar Mishra. Talking about vintage aircraft जो कि इस बार देखा गया है during fly past during RD parade, it is aircraft Dakota and Rafale. ठीक है, अब आप Rafale जो है अभी recently induct किए गए हैं, it is important. कौन सी country से किए हैं? Very very important, ये बताएंगे. And talking about aircraft Dakota, ये कौन सी country से इंडिया ने लिए हैं या फिर किसने manufacture करे हैं? इसको भी याद रखना important है. So please you let me know about this. Talking about the third one, very important, Flight Lieutenant Bhavna Kant, she became the first female fighter pilot to be the part of RD parade. The next one is the marching contingent
and a band of Bangladesh Army participated this time in RD Parade. RD Parade में इस बार बांग्लादेश आर्मी का जो contingent था that was there. And talking about the best marching contingent among the three services, किसको मिला है इस बार? जाट रेजिमेंटल सेंटर मार्चिंग कंटिंजेंट को मिला है, ठीक है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति अरोरा. शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी इन द फ्लाई पास्ट. आज तक आपने देखा होगा राजपथ के ऊपर से काफ़ी फाइटर प्लेन्स एंड जेट्स एंड आपके जो ट्रांसपोर्ट प्लेन चॉपर्स हैं वो जाते हैं, लेकिन टिल डेट देयर हैड नॉट बीन इवन अ सिंगल लेडी अ पार्ट ऑफ इट. सो दिस टाइम पहली बार फ्लाई पास्ट के अंदर जो राजपथ के ऊपर से जाती है ड्यूरिंग रिपब्लिक डे, Flight Lieutenant Swati Arora was part of it, and it is very very important. You will answer that she was in which plane? कौन से plane को उन्होंने इस बार fly past में fly किया है? You will comment it down in the comment section below. इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ग्रैमी अवार्ड्स में ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट जो ग्रैमी अवार्ड है उसमें जो फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड को जीता है? ही इज नन अदर देन पंडित रवि शंकर. ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है. और इसके अलावा पंडित रवि शंकर को 1967 में बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस का मिला है, 1972 में एल्बम ऑफ द ईयर का मिला है, 2001 में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का मिला है और 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है. सो ही हैज गॉट मेनी ग्रैमी अवार्ड्स एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज द इंडियन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैमी अवार्ड्स. ठीक है, 4 ग्रैमी प्लस 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो टोटल उन्हें 5 अवार्ड मिले हैं टिल 2013 फ्रॉम ग्रैमी. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप याद रखेंगे इस बात को. Now coming to the Gallantry Awards 2021, this is also given during Republic Day Parade, तो important है. पहली बात महावीर चक्र वो मिला है कर्नल संतोष बाबू. यू ऑलरेडी नो कि फेस ऑफ के टाइम पे मिला है ये. देयर वाज अ फेस ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप इन लद्दाख सेक्टर, सो ही हैज गॉट महावीर चक्र फॉर दैट and we respect him for the fact that he has done a great sacrifice for the country. Now talking about the awards, I already told that there are 2 types of awards. One is the peacetime award and one is the wartime. It is not a compulsion that wartime awards, be it PVC, be it Mahavir Chakra, that you will get it only posthumously. It's not compulsory. You may even get it if you have done something of bravery during the war. Okay, so it has been given posthumously to Colonel Satosh Babu. ठीक है, नेक्स्ट इज द वीर चक्र. वीर चक्र इन सबको मिला है. एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चांसेस कम है कि आएंगे, लेकिन महावीर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके अलावा आपका जो कीर्ति चक्र है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर शौर्य चक्र. ठीक है, शौर्य चक्र में मेजर अनुज सूद, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना. ही हैज गॉट इट पॉस्ट्यूमसली 21 RR. एंड कीर्ति चक्र जो है वो मिला है सूबेदार संजीव कुमार 4 पैरा SF, इनको भी पॉस्ट्यूमसली मिला है. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये 3 तो बहुत अच्छे से याद कर लें. कर्नल संतोष बाबू, second one is Subedar Sanjeev Kumar, and the third one is Major Anuj Sood. ठीक है, now talking about the first PVC. First PVC किसे मिला है? Major Somnath Sharma. And when we talk about only PVC from Indian Air Force, Indian Air Force से सिर्फ एक को ही मिला है, and that is निर्मल जीत सिंह सिखौन. फाइन, तो आप ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे रिलेटेड टू गैलेंट्री अवार्ड्स. नाउ विद दिस वी रैप अप द अवार्ड सीरीज एंड नाउ विल बी स्टार्टिंग अप विद द स्पोर्ट्स सीरीज. फाइन, सो कल आपका स्पोर्ट्स सीरीज विल बी अपलोडेड, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से देखें. इसके अलावा मैंने एक CDS की सीरीज लॉन्च करी थी जिसमें स्पोर्ट्स एंड डिफेंस कवर्ड है. सो प्लीज़ मेक श्योर आप उसे अच्छे से कर लेना, बिकॉज उसके अंदर जितनी भी करंट अफेयर्स हैं सब कुछ एडेड है. लेकिन अब मैं स्टैटिक की लेके आऊंगी फॉर स्पोर्ट्स एंड डिफेंस. ठीक है, स्पोर्ट्स और डिफेंस की आपकी स्टैटिक वाली वीडियो आएगी. करंट अफेयर्स आपको CDS वाली सीरीज से ही कवर करने हैं. व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो इन 2 वीडियोज को प्रॉपरली देख लेना अलॉन्ग विद जो आपकी करंट अफेयर्स FCAT की ऑलरेडी चल रही हैं, दैट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो कवर देम प्रॉपरली. So with this, I just end the series, and please make sure that you like the video and share it with your friends, whoever is preparing for FCAT examination. And if you haven't subscribed already, please make sure that you go and subscribe the channel, because you'll get a lot of important videos that are related to FCAT examination. And all the very best, guys. Keep working hard, keep your Josh high, and I'm very sure that you'll make it to the list.